دنیا میں جو مختلف قسم کے فتنے رونما ہوتے ہیں ان فتنوں کا ذکر کیا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے اسباب و تدارک اور ان کو روکنے کے جو اسباب ان سے بچنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں طالبات میں اپنے علمی ادبی اور فکری جو مجلہ ہے اس میں اپنی جو صحابتی صلاحیتیں ہیں آپ نے ان کو ظاہر کیا ہے تو انشاءاللہ بلا کسی تاخیر میں بانی جامعہ ڈاکٹر نوحرہ شیخ حفظہ اللہ سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو علمی ادبی اور فکری سالنامہ اس ادارے کا ہے اس کے اجرا کی کارروائی انجام میں مشہور الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں عزیز طالبہ، عزیز معلمہ، عزیز مہمانان خصوصی، عزیز ذمہ داران جامعہ اور ہمدرد ساتھیوں، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو سارے لوگ لائیو میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ میسیج بھی لکھ رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی. ان سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں کیونکہ وہ تمہیں بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور آج اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے. میں اس اللہ کا شکر تو اپنے زبان سے ادا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ اگر کوئی رب کی تعریف لکھنا چاہے تو سارے زمین کو اور آسمان کو پیپر بنا لے اور سمندر کو انک بنا لے اور تمام درختوں کو قلم بنا لے. جب بھی یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ پیپر ختم ہو جائیں گے، یہ آسمان ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. وہی تعریفوں والے پروردگار نے عزیز طالبات اور عزیز معلمات آپ کو میرے سامنے لے کر آیا ہے. آپ کو آپ کے سامنے مجھے لے کر آیا ہے اور آپ سب سے پھر سے ملنے کا اللہ نے مجھے موقع عنایت فرمایا. پچھلے دنوں میں جو تکالیف آئے ہیں، جو تکالیفوں سے گزرے ہیں، میں کئی 2 دن سے سن رہی تھی کہ آپ نے بھی میرے جانے کے بعد کئی تکالیفوں کو فیس کیا ہے، مشکلوں کو فیس کیا ہے. میں ہر وقت جو ہے آپ کے لیے دعا کرتی تھی اور ہمیشہ آپ کو یاد کرتی تھی. جامعہ کے بارے میں تو زیادہ تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی شروعات صرف 6 لڑکیوں سے ہوئی تھی. کتنے؟ صرف 6 لڑکیوں سے اس کی شروعات ہوئی تھی 1984 میں اور چھوٹے بچوں کی پڑھائی سے شروع ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے آج اس میں 1000 لڑکیوں کی ایڈمیشن کا اللہ نے موقع دیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی ہماری طاقت نہیں ہے. کوئی کہتے نہیں یہ چلا رہی ہے، وہ چلا رہی، کچھ نہیں ہے، اللہ چلاتے ہیں. اور اللہ جس کو قبول کرتے ہیں وہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے. وہ کسی کو بھی اللہ قبول کر کے چلا لیتے ہیں. اللہ چاہتے تو میری جگہ کسی اور کو قبول کر لیتے، کسی اور کو قبول کر لیتے. اس نے جہاں کو خدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو ہے قبول کرتے ہیں یہ کام کے چلانے کے لیے. مجھے آج بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ مجھے جب مبارک آپا ملنے کے لیے سنسلگوڑا جیل میں آتے تھے، امی آتے تھے، کہتے تھے امی جان مجھ سے کہ بیٹا بچے سند لینے سے انکار کر دیے کیونکہ 18 کو انہوں نے عالمیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں بتاؤں آپ کو اس کی اسٹوری کہ 100 لڑکیاں ایڈمیشن لیتے ہیں، اس میں سے عالمیت تک 5 لڑکیاں پہنچتے ہیں. بس 95 لڑکیاں جو ہے کوئی رابطے میں رک گئے، کوئی 3 سال میں رک گئے، کوئی 2 سال میں رک گئے، کوئی پڑھنے کے لیے آگے ہی نہیں بڑھے. مگر ایک عالمیت تک پہنچنا بھی الحمدللہ بہت ہی بڑی تمہارے لیے خوشخبری کی بات ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ فضیلت جو بولتے ہیں جسے گریجویشن کہتے ہیں، اور اس کو وہ فضیلت کرنے
40 شاید ہیں, 40 سے زیادہ فضیلت کے لڑکیاں ہیں. اور کتنے بیٹے؟ 50 ماشاء اللہ, 50 فضیلت کے لڑکیاں ہیں. کیوں کہ 3 سال کے ہی 18 کے 19 کے 20 کے. اور مگر مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے کیونکہ میری زندگی جو گزری ہے خونی رشتوں میں نہیں بلکہ دینی رشتوں میں گزری ہے. میری زندگی اپنوں سے زیادہ غیروں نے ساتھ دیا ہے الحمدللہ, اور اپنے بھی بے شک ساتھ دیے ہی, مگر تمہاری وہ محبت وہی ہے. تمہارا میرا صرف دین کا رشتہ ہے, اور یہ رشتے میں اگر دوسرے ہوتے تو 7 سال پڑے گی. میں اندر سے صحیح کر کے بھیجنے کو تیار تھی کہ اگر میں بولی بچوں کے سرٹیفکیٹ لو میں صحیح کر کے دے دیتی ہوں, سب کچھ تیار تھی, مگر تم نے انکار کر دیا کہ نہیں, ہمارے آپا جب تک نہیں آتے, ہماری ماں جب تک نہیں آتی, ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں لیتے. اب نہیں تو آپ کو معلوم تھا کہ اگر یہ سالانہ جلسہ ہوتا, اینیول فنکشن ہوتا, تو ہر سال 20,000 سے 25,000 لوگ آتے تھے اور ان کا انتظام سب کچھ ہوتا تھا. مگر اللہ نے الحمدللہ جامعہ میں ہی آج تم سب کو اتنی بڑی جگہ اللہ نے دے دیا ہے, جو کانفرنس ہال میں بھی پہلی بار میٹنگ کر رہی ہوں, کیونکہ پچھلے دنوں میں کانفرنس ہال کا ورک چل رہا تھا, کام چل رہا تھا. میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں. اس پر میں آپ کو چند باتوں کی نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ مجلہ کی ابتدائی کرنے سے پہلے, کیونکہ اس کے بعد کا جو نشست ہے وہ صرف اسناد کے لیے ہی ہوگی, اور پڑھائی پڑھنا تو سب پڑھ لیتے ہیں مگر عمل کم لوگ کرتے ہیں. تو پڑھائی کم کوئی بات نہیں ہے, مگر عمل کرو. قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کہتا ہے غریبوں کی مدد کرو. ہم اگر مدد کرتے نہیں تو اس آیت پر عمل کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بیماروں کو خیال کرو, ہم بیماروں کو خیال کرتے ہیں تو ہم قرآن کی بات کو سنتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم فلانے سے فلانوں سے جو ہے یہ کام کرو, اور اللہ فرماتے ہیں کسی کے دل کو درد نہ دو. ان اللہ لا یفسدون, اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے فساد کرنے والے کو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کرنے والوں کو اور اچھے عادت والوں کو, اچھے اخلاق والوں کو پسند کرتے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچے جو ہے ایسے ہی انشاءاللہ بنیں گے, اچھے محسنین اخلاق والے, اچھے عادت والے بنیں گے, اور ضرور سے ضرور تم جو ہے دنیا کو بھی ایک سبق سکھائیں گے. اب میں دوسری کڑی بات کرنے جا رہی ہوں. دین جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو اس پر عمل کرنا لازم اور واجب ہوتا ہے. اور دوسری بات کہ جب ہم دین سیکھ لیے تو خالی تسبیح پڑھتے رہنا ہی ہمارا کام نہیں ہے, اور صرف نمازیں اس سے ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرآن مجید میں ہزاروں احکام ہی اللہ تعالیٰ کے, جیسے اللہ نے جنرلی بتائے گی کہ اے لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آؤ, کسی کی غیبت نہیں کرو, کسی کی برائی نہیں کرو. اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرما کر کہ اے ایمان والی عورتوں, آپ کسی کو جب سامنے دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مجھ سے نیچے کی ہوگی, یہ ایسی ہوگی, وہ ایسی ہے, یہ نہیں سوچنا. اللہ فرماتے ہیں کیا معلوم, دیکھنے میں کالی ہے, اندھی ہے, لنگڑی ہے, راستے پہ چل کے جا رہی ہے, تو دیکھنے میں اتنی شہرت رکھنے والی ہے, اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ ہو. سبحان اللہ. یہاں پر اللہ ہماری غروری کو کاٹ دیتے ہیں کہ انسان غرور کر نہیں سکتا. اور ویسے ہی ایمان والے مردوں کو بھی اللہ نے خطاب فرمایا کہ ایمان والے مردوں, کسی کو بھی دیکھ کر انکار مت کرو, غرور مت کرو. کیا معلوم تم جس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو, مذاق کر رہے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ تم سے بھی زیادہ اچھے ہو, اللہ کی نظر میں وہ تم سے بھی زیادہ بہتر ہو. ان باتوں کو تم یاد رکھنا. باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں, کبھی بھی کسی کو بھی دیکھ کر, چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو, ہم لوگ غرور نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا, اچھا سلوک کرنا. ہمارے اچھے سلوک کو لوگ دیکھیں گے اور ہماری عادت کو لوگ دیکھیں گے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ کچھ بھی بکواسیں کرتے رہتے ہیں. میرے اسٹوڈنٹ ملاقات کرے مجھے کل, تھوڑے میرے مولویات بھی ملاقات کرے, بتا رہے کہ آپ پچھلے دنوں میں ایسا کہہ دیا, ویسا کہہ دیا, ویسا کہہ دیا. میں بولی تمہیں نہیں پتا بیٹا کہ مجھے وہ کتنے نیکیاں دے رہے ہیں, نیکیاں بٹور رہی ہوں. جتنے بھی لوگ وہ برائی کو جب تک دیکھتے رہیں گے اور وہ برائی کو برائی سمجھتے رہیں گے, جبکہ تحقیق نہیں, کچھ نہیں, تو میں تو نیک کو نیکیاں ملتے رہیں گے. کیونکہ یہ فرمان اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جو انسان کسی اچھے انسان کو غلط کہتا ہے, پلٹ کر اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں, اور وہ بد دعا بھی کرتا ہے تو پلٹ کر بد دعا بھی اس کے طرف چلی جاتی ہے. اور جو ہے ناحق کے ساتھ لڑنے والوں کے ساتھ
اللہ لڑائی کرتے ہیں. جو اللہ لڑائی کرتے ہیں کیا کوئی ان سے جیت سکتا ہے؟ کیا ان سے کوئی بچ سکتا ہے؟ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے تہجد میں سب کچھ. مگر میں آج ایک بات بتانا چاہتی ہوں. جس وقت میرے اوپر مشکل ہے، مجھے محلوں سے لے کر چلا گیا گا، بڑے آسائش سے بڑے آرام سے رہتی تھی، اور ہر طرف کام والیاں، ہر طرف 10 کام والیاں، اور کبھی دیکھے نہیں کہ کوئی چھوٹی چیز کیسے ہوتی ہے کیا ہے. وہاں جاتے ہی دیکھو دین کتنا سکون ہے، تسلی ہے. اس لیے میں چند باتیں میں تم کو بتانا پڑتی ہوں. جب مجھے اریسٹ کیا گیا، جب مجھے جیل میں لے جایا گیا، میرے ہاتھ میں ایک چادر پکڑا دی، میرے ہاتھ میں ایک چادر پکڑا دی پتلی سی، اور وہ بھی اس پر کئی لوگ سوئے ہوں گے. اس طرح کی ایک چادر پکڑا دی، بولے اس چادر پہ تم کو سونا ہے، اور وہ جگہ بھی 3 برش کی ہوگی، اس سے زیادہ کی جگہ نہیں. میرے ہاتھ میں جب وہ چادر ہے تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں، میں مسکرا کر کہنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا یہ احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ چادر دے دیا. میرے نبی تو ایک سوکھے بورے پہ سوتے تھے، ان کے جس پہ مبارک پر نشہ ہو جاتے تھے، اس سے تو زیادہ نہیں. پھر اس کے بعد کہے کہ جانا ہے برتن پکڑ کر لائن میں کھانا لینا ہوگا. میں تو جاتی نہیں، میں کوئی بھوکی بھی رہ جاؤں گی، کوئی بات نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ کچھ انتظامات کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تھے وہ لا کر کھانا دیے. تو جب میں نے اس کھانے کو دیکھا، اس روٹی کو دیکھا جو کبھی نہیں دیکھی، میرے دل میں میرے نبی کی یاد آئی. میرے نبی کھجور کا سوکھا ٹکڑا کھا کے زندگی گزارتے تھے. اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جا کے کہتے تھے بیٹی تیرا باپ 3 دن سے بھوکا ہے اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، اور بیٹی کچھ ہے گھر کے اندر کھانے کے لیے. اس طرح سے وہ زندگی گزارتے تھے. تو ماشاءاللہ یہ کھانا تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. چلو اللہ رب العالمین کا جو دین تھا وہ مجھے سبق دے رہا تھا. دوسری جگہ پر لوگ آ کے کہتے تھے کہ آپا لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے 50,000 کروڑ کیا نہیں کر دیا، آپ نے 500 کروڑ کر دیا، میں نے 10,000 کروڑ کیا کیا لوگ بتاتے تھے. میں بولی اللہ آپ جانتے ہیں. کتنی تسلی ہو جاتی تھی، کتنی سکون ہو جاتی تھی. میں کہتی تھی کہ اللہ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے، اور مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے ایک یقین ضرور تھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جو بندہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے خطروں کو اللہ ضرور جمع دے گا. میں ضرور واپس آؤں گی اور بڑھ کر کام کروں گی انشاءاللہ، آپ سب کے لیے کوشش کروں گی. تو انشاءاللہ اللہ نے مجھے جو ہے واپس کیا، اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس وقت میں تم سب نے مجھے ساتھ دیا اور میرے لیے دعائیں کیے. میں نے تمہاری انٹرویوز کو دیکھا، تمہارے رونے کو دیکھا، تمہارے باتوں کو دیکھا، مجھے بہت ہی بہت خوشی ہوئی. میں تم سب کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو میں ہمیشہ میرے بچے مانتی ہوں. میں کبھی نہیں کہتی کہ وہ جامعہ کے اسٹوڈنٹ تھی، طالبہ تھی. میں ہمیشہ یہی پوچھتی کہ میرے بچے کیسے کیا کرتے ہیں. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی میں نے 3 سال میں نہ میرے بچوں کو یاد کر کے روئی، نہ میری ماں کو یاد کر کے روئی، نہ میرے بہنوں کو یاد کر کے روئی. کبھی مجھے اگر آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو تمہاری یاد سے آتے کہ میرے بچے کیا کرتے ہوں گے، کیا کھاتے ہوں گے، کیسے کرتے ہوں گے. بہت ڈر جاتے ہوں گے، بہت دعائیں کرتے ہوں گے، کیونکہ معصومی نادانی لوگ کیا کیا بول رہے ہوں گے، اور اندر کر کے بولے تو تم اس کے بارے میں کیسے کیسے سوچتے ہوں گے. تمہارے بارے میں مجھے بہت ہی دل تکلیف ہوتی تھی، مگر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین ہے میرے ساتھ، ضرور میرا اللہ میری مدد کرے گا. تو جو بھی مددگار تھے جیسے شیخ الجامعہ ابراہیم مدنی حفظہ اللہ، جس دن مدینہ منورہ سے آئے جامعہ میں خدمت کر رہے تھے، اللہ نے ان کو بھی جو ہے دنیا سے جو ہے لے لیا. اور ویسے ہی میرے کورٹ کے لیے، لیگل کام کے لیے سلیم بھائی مدد کرتے تھے، وہ بھی کووڈ-19 کے اس میں جو ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور ویسے ہی حسین بھائی جو ہمارے لیگل ورک لائق تھے، انہوں بھی کام کرتے تھے، ان کو بھی اللہ نے ہٹا دیا. تو میں اس وقت میں بہت ٹوٹ گئی تھی. جب ان تینوں کا انتقال ایک بار ہوا تو میرے دل کو بہت درد پہنچا. پھر میں نے کہا کہ اے اللہ، زمین مر سکتی ہے مگر تو نہیں. تو حی القیوم ہے، تو زندہ ہے، تو قائم رہنے والا ہے. سپورٹ جا سکتے ہی مگر تیری ذات باقی ہے. تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کا ڈر نہیں. میں تیرے ساتھ کا بھروسہ لے کر میں چل سکتی ہوں. اور کئی لوگ کیا کیا بولتے رہے، مگر سبحان اللہ مجھے ہمیشہ
वो इरादा नहीं किसी को धोखा देना, दगलबाजी करना या किसी से ये करना। हालात ऐसे इंसान को कभी भी आ सकते हैं, तो इसलिए तुम भी अपने हालात पर साबित कदमी रहो, अल्लाह के दीन के ऊपर आप साबित कदमी रहो। आप जो पढ़ाई पढ़ेंगी उस पर अमल करो। कल हमारी बातचीत हो रही थी हमारे इसमें कि तुम अपने पैरों को ठंडे के लिए कुछ जॉब करना सीखो, कुछ बिजनेस करना सीखो, अपने हाथों से कमाना सीखो। मजबूर मत रहो कि जब तक तुम मजबूर रहेंगे कुछ न जाओगे। अगर अल्लाह ऐसा कहते कि सिर्फ मर्दे ही कमाना है, औरत नहीं कमा सकती, तो अल्लाह कुरान में ये नहीं कहते कि ज़कात देने वाले मर्द, ज़कात देने वाली औरतें। तो कहा है ना अल्लाह ने, समझ में आ रही है बात तुम सबको? क्या कहा है अल्लाह ने? क्या कहा है? जवाब दो। ज़कात देने वाले मर्द, ज़कात देने वाली औरतें। जब कमाएंगे नहीं तो कैसे ज़कात देंगे? ज़कात का मतलब जो इनकम पे इंडिया में हम इनकम टैक्स पे करते हैं, वैसे ही इस्लाम में जो कमाते हैं उसके ऊपर ज़कात पे करते हैं। गरीबों को दिया जाता है 2.5%। तो अल्लाह फरमाते हैं तो सोचो फिर अगर हमको कमाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, तो फिर ज़कात देने का अल्लाह कैसे फरमाते हैं? तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं जामिया के तमाम हमारे स्टूडेंट को अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले दिनों में भी आज तक 2000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ के फारिग हुए इन जामिया से, मैं उन सबको बुलाकर इंशाअल्लाह 3 दिन का एक बार बिजनेस ट्रेनिंग दूंगी। तुम बिजनेस ट्रेनिंग करोगे इंशाअल्लाह, तुम उस पर काम करोगे, तुम अपने कदमों पे खड़ोगे, तुम एक नहीं बल्कि तुम 10 को पालोगे, देखोगे, देखभाल करो। हमेशा हम ये सोचते रह जाएंगे कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, तो फिर कौम को कौन देखेगा? तो इसलिए कौम को देखने की भी हम कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारी दूसरी नशिस्त भी है और नमाज का भी वक्त हो गया है शायद, और खाने का भी वक्त है शायद, उसके बाद दूसरी नशिस्त है। अभी किताब का इजरा होगा इंशाअल्लाह, कोई आइए। अभी किताब का भी इंशाअल्लाह इजरा होगा और मैं बड़ी मुबारकबादी पेश करती हूँ। हर साल ये किताब हमारे बच्चे लिखते हैं जिसमें बड़े सारे उन्वान होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि तुम्हारी ये किताब जो तुम्हारे हाथों से लिखी गई किताब उन्वानात जो है ये मकबूल हो जाए दुनिया के अंदर। और तमाम मेहमान जो वालिदैन आए हैं, मेरे तालिबात के जो माँ बाप आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे तकालीफ के हालित में आपने ऑनलाइन से भी अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, क्योंकि हमारे तो हालात ऐसे आए थे मगर सारे वर्ल्ड में कोविड-19 आ गया और जिसकी वजह से सबके पढ़ाई रुक गए, सब लोग स्कूल नहीं आ पाए, कुछ नहीं। तो सुभान अल्लाह जो है, अल्लाह ने तुम्हें ऑनलाइन के जरिए से भी तुम्हारे तालीमात को जो है कंप्लीट किया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक जान सल्फिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो ये सारे जिम्मेदारी को जो है अल्हम्दुलिल्लाह निभाते हैं। और वैसे ही नानी माँ का जो हमेशा नानी माँ करके तुमने नाम ही रख दिया, क्योंकि हमेशा नानी माँ करके बुला के पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अम्मी को नानी माँ करके लोग जो है, जैसे तुम नवासिया ही, इस तरह से पूरी दुनिया भी अम्मी को जो है वही बुलाने लग गए। मैं शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि मेरी माँ ने उस वक्त जब मैं तकलीफ में थी तो माँ क्या चीज है मेरी माँ ने बताया। हर वक्त आना, वहाँ दरवाजों पे पड़े रहना, हर जगह जो मुझे लेके जाते थे वहाँ पर आ जाना, और बहुत तकलीफों के साथ जो है मुझे बाहर लाने के लिए तुम सब जैसे दुआ की है, वो माँ भी मेरी जो है बहुत दुआ की है, बहुत तकलीफ उठाई है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी माँ को अल्लाह सलामत रखे, वैसी तंदुरुस्त रखे और उसको और भी ज्यादा तुम्हारे काम करने की, खिदमत करने की जो है अल्लाह मौका दे। और वाकई जामिया में सबको देखकर मुझे बहुत ही खुशी और मुसरत हो गई। जैसे इस्माइल भैया ने कहा कि हमारी रूह वापस आई है तुमको देखकर, तो वैसे ही हमारी रूह वापस आ गई है, जैसे तुमको देखकर हमारा गया हुआ जान वापस आ गया है। और कल वही शेख बता रहे थे तो थोड़ी देर में ऐसा देखने आई थी। हमेशा आदत है मुझे कि जो भी काम कैसे चलते हैं देखने के लिए, तो थोड़ी बातचीत हो गई हमारे साथ में बैठ के। तो उस वक्त मैंने कहा कि जामिया की बात करते हो तो जामिया मुझे अपने जान से भी ज्यादा प्यारा है और ये पूरी दुनिया से ज्यादा प्यारा है। अगर कोई बोले कि पूरी दुनिया तुझे दे देंगे, ये चीज हमें चाहिए, तो मगर मैं कहूँगी कि दुनिया नहीं चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। तो इंशाअल्लाह तुम भी अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पर इंशाअल्लाह कायम रहो। अल्लाह के फजल से फिर से बातचीत होगी इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त में। और मैं सबका जज़ाकल्लाह कहती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाअल्लाह ये किताब के इजरे के बाद शायद खाने का इंतज़ाम है और नमाज का भी इंतज़ाम है। नमाज और खाने के बाद जो है वापस कितने बजे प्रोग्राम करती
for attending this. इंशाअल्लाह जो है अभी किताब का इजरा भी अल्लाह के फजल करम से होगा और मैं यही आप सबको नसीहत करती हूँ कि तकवे पर रहें और डरे नहीं, घबराए नहीं। जिंदगी में जब भी तकलीफ आ जाए मुकाबिलों से फाइट करें, मुकाबिलों को डर कर ना भागें। और मैंने हमेशा सिखाया है और मेरी जिंदगी में भी यही अमल रहा है। मेरा कभी भी हमेशा घर में भी बाहर भी साथियों के साथ भी एक वर्ड होता है। मैं कहती हूँ हमेशा कि आप साथ दो या ना दो, मैं मेरे मकसदों को लेकर अकेली चलूंगी। कोई साथ दे अल्लाह का फजल है, कोई ना दे अल्लाह का फजल है, मगर मैं हमेशा मेरे अल्लाह की मदद से मैं हर काम को आगे लेकर जा सकती हूँ इंशाअल्लाह। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर इंशाअल्लाह आप सबका कि अभी प्रोग्राम जारी रखने के लिए बोल रहे हैं कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही जो है इंशाअल्लाह शायद Lion is back. Boss is back. Long live Navhira. Professor Anduru Kuda. Long live. Long live. Jai Hind. ఈ యొక్క సమావేశానికి కారకులు మేడం నవహీరా గారు. I am the first person of this village. మీరు ఇక్కడికి రాకూడదు అని చెప్పిన వాళ్ళలో నేను ఒకడిని. మీరు ముస్లింస్ మమ్మల్ని ఏదో చేసేస్తారు, ఇక్కడ ఏదో జరుగుతా ఉంది అని అపోహల్లో పేపర్లో చదివిన వెంటనే నేను ఒక పర్సన్ who opposed this. After some time, Aziz, Ismail Anna, my beloved leaders కొంతమంది నువ్వు ఫస్ట్ అక్కడ వెళ్ళి విజిట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ యూ డిసైడ్ ఆన్ యువర్ మైండ్ యూ గో అవుట్ అని చెప్పారు. నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఏందో అనుకొని ఇక్కడి నుంచి మా దేవాలయానికి బాంబు పెట్టి పేలుస్తారని చెప్పి ఇలాంటి ఎన్నో అపోహలు. వాట్ ద మేడం టోల్డ్. ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు 2,000 కోట్లు 3,000 కోట్లు 5,000 కోట్లు అన్నట్లు ఆ విషయంలో ఈ విషయంలో కూడా అలానే మేమందరం కూడా అనుకున్న వాళ్ళమే. ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద బిల్డింగ్ ఇక్కడ చూసిన ఏర్పాట్ల తరువాత ఇక్కడ జరుగుతున్న దాన్ని విచారించుకున్న తరువాత ఐ ఫెల్ట్ వెరీ 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 గిల్టీ. నేను చాలా తప్పుడు మా ఫాదర్ చెప్పేవాళ్ళు టీచర్ దూరపు పనులు ఉన్నగా ఉంటాయని చెప్పి మేము దీన్ని చూసి ఏదో అనుకునేసినాం. దాని తర్వాత దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంత మహత్తర కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఏదో దీన్ని అడ్డుకోవాలని చెప్పి దీంట్లో అడుగు పెట్టి చూసిన తర్వాత నేను నా వంతు నాకు చేతనైన కాడికి ఏ రోజు కూడా ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి త్వరగా ఉండాలి కానీ ఒక్క స్టెప్ లో కూడా నెగటివ్నెస్ ఉండకూడదని చెప్పి నా మైండ్ లో ఫిక్స్ అయి నేను బయటకు వెళ్ళాను. ఆఫ్టర్ మీటింగ్ ఇస్మాయిల్ అన్న మీరు అల్లాను కొలుస్తారు, నేను వెంకటేశ్వర స్వామిని కొలుస్తాను. నేను సత్య ప్రమాణంగా చెప్తున్నాను, మీ అందరి ముందు ధైర్యం చెప్పగలను. నా బిడ్డకి నేను ఇంత వసతినో ఇంత పరిస్థితినో కల్పించలేను కాబట్టి ఇలా 100 బిడ్డలకి ఇలాంటి వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తున్న ఆ తల్లి బాగుండాలా, నిన్ను నూరేళ్లు బతకాలా, ఇంకా ఎంతో వేల వందల మందికి మంచి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను నవహీరా గారి ద్వారా. మనం బండిలో పోతా ఉంటే ఒక భిక్షగాడు వచ్చినప్పుడు 10 రూపాయలు 5 రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఆలోచించే రోజుల్లో వందలు వేలు లక్షలు కోట్ల రూపాయలను పేదవాడి చదువుల కోసం ఆమె దట్టు ఒక మహిళగా మహిళల అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తున్న
చెప్పి నేను ధైర్యంగా చెప్పగలను. ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడతాం. కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి. ఆ సమస్యలన్నింటినీ కూడా ఎదుర్కొని నిలబడగలిగితేనే మనం గెలుపు చూడగలుగుతాం. ఆ గెలుపు మేడం గారు ఇప్పుడు చూస్తా ఉన్నారు. ఈ జరిగిన సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు ఏదైతే ఉందో అలాంటి తప్పుడు ఆలోచనలతోనే ఆ రోజు నేను ఎలా అయితే దీనిపైన నెగిటివ్ థింకింగ్ తో ఉన్నానో అలాంటి వాళ్ళే ఈ రోజు ఇబ్బంది పెట్టారు. కానీ ఆమె అవన్నీ కూడా ఎదుర్కొని ఆ కష్టాలన్నీ కూడా ఫేస్ చేసి ఇంకా నేను చెప్పగలను. ఈ మాదిరి బిల్డింగ్ ఈ మాదిరి చదువులు ఉచితంగా ఖర్చు పెట్టకపోతే ఆమెకి నీ కష్టాలు వచ్చేవి కావని చెప్తా నేను ధైర్యంగా. ఏదో 4 గారు వచ్చేస్తున్నారు, వేలకు వేలు లక్షలు కోట్లు పేదలు పెట్టేస్తున్నారనే వాళ్ళు పెట్టలేని స్థితిలో పెట్టేవాళ్ళు అడ్డుకుంటా ఉన్నారని చెప్పి నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియపరుచుకుంటున్నా. The word which I am telling him is that the people who are not able to do service are obstructing madam who is doing service. The people cannot able to afford the money liberal into the poor. Afford chase వాళ్ళు they are obstructing. The people who are interested to do service, the people who are not able to do service, they are obstructing the people who are doing service like this. That is only the thing happening. So everything will be fine. Coming days we will be happy with madam. We all will be happy with madam. Like Allah will serve the nation, all your people. Like madam will serve all of us. Thank you. Jai Hind. Long live Rohila. क्या बात है तो नहीं समझ में आता. खुशी में क्या बात करना क्या नहीं बात करना भी मालूम होता है. मैं क्योंकि इधर हमारा दोस्त आसना है, तेलुगु में बात करना समझता हूँ क्योंकि वो भी समझ गया उसका क्या नसीहत है, इसीलिए मैं भी तेलुगु में बात करना समझता हूँ. ये मदरसा यहाँ शुरू करते से टाइम को इधर के लोग क्यों आड़ा करते हैं, क्यों साझेदारी नहीं देते, कोई परवाह नहीं, रोकने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता. क्या मुसलमान इतने किसको वाक़ा भी नहीं दिलाते, हर एक इंसान को मोहब्बत से प्यार से खिलाती खाना मिलाती, हमने क्यों ये दुश्मनाई समझ में नहीं आने वाली थी. मैं इधर आके देखा हमारा ईमान का झंडा इधर मुसलमान लोग कम है क्योंकि तिरुपति खरीद चंद्रगिरी खरीद जो नमाज पढ़ने वाले भी कम है. मैं भी बोल रहा हूँ दिन के लिए मुझे कम मालूम, दुनिया के दीवाना हो गए, गली पे पॉलिटिकल में फिरता था. इधर फिर भी हमारे मुसलमानों के लिए एक जरिया आ गया. इसके साथ हमारे मुसलमानों के बच्चे आगे बढ़ेंगे करने का दिल में मोहब्बत से इधर आपको जो इस्माइल भाई से अजीज से मिलता था, क्या भाई ये हमने नहीं समझ में आ रहा है, ये भाई को हमारे ऊपर ऐसा दबाव चल रहा है, इनको भैया पूरा बोलते थे. लेकिन हम कैसा भी एक जना को ऐसा नहीं कर सकते. अल्लाह हमारा ताकत छोड़ दिया. ऐसा जो साझेदारी देने वाले के साथ खड़े अल्लाह हमने भी खुश रखता. ये भाई बच्चा को हमें भी साझेदारी देना, क्योंकि बोले तो मुझे भी 2 भाई बच्चा है. भाई बच्चा को साझेदारी देने वाले दिन का दिन अल्लाह उनको हर एक में बरकत देता, दिल बढ़ाता और कुछ साझेदारी देता करने का इरादा आप
करिए। अभी आपके सामने मैं बोलने के लिए अभी खुशी करता हूँ। ఏదైతే ప్రతి కార్యక్రమంలో మంచిని పెంచాలన్న తపన ఉన్నటువంటి షేక్ మౌహిరా గారు కోవిడ్ సెంటర్ ఇక్కడ పెట్టాలని, ఈ చంద్రగిరి మండలంలో కోవిడ్ సెంటర్ పెట్టడానికి ఎక్కడైనా అనువైన స్థలం లేదు అని మన గౌరవ శాసనసభ్యులు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఇక్కడికి వచ్చి చూశారు. సాయంత్రం 4 గంటలకి అధీశ్వరు ఇక్కడే ఉన్నారు. వచ్చి చూసిన తర్వాత కోవిడ్ సెంటర్ ఇదైతే చాలా బాగుంటుంది మసాన్, మీరు అక్కతో ఒకసారి మాట్లాడండి అంటే, అది రంజాన్ నెల, మేము ఫోన్ చేసే ప్రయత్నం చేశాము, అక్క లిఫ్ట్ చేయలేదు. అన్న గంటకి ఫోన్ చేస్తున్నారు, అడగండి అక్కని. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ పెడితేనే అక్కకి మనకి, ఎందుకంటే ఆమె ప్రతి సేవా కార్యక్రమంలో ముందుంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడే పెట్టాలన్న ఆయన ఆలోచనని రాత్రి ఎప్పుడో 11కో 12కో అజీజ్ గారికి అక్క ఫోన్ చేసి ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్పండి, ఇది అమ్మాయిల హాస్టల్, అమ్మాయిల సౌకర్యం కోసం ఏర్పాటు చేసింది, కానీ మంచి కార్యక్రమం అనుకున్నప్పుడు నేను ముందుంటాను, మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని, కోవిడ్ అన్నది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరిని ఇబ్బంది పెడతా ఉంది, మీరు ఖచ్చితంగా కోవిడ్ సెంటర్ ఇక్కడ ప్రారంభించుకోమని రాత్రి 11 తర్వాత మన మౌహిరా గారు చెప్పడం, అప్పటికప్పుడే దాన్ని ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్తే ఆయన ఆనందంగా ఇక్కడ కోవిడ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. అక్క ఈ వేదిక ద్వారా చెప్తున్నా, ఈ మండలం కాదు ఈ జిల్లాలో మిమ్మల్ని మీ ఆలోచనని వ్యతిరేకించిన ప్రతి వ్యక్తి ఈ కోవిడ్ సెంటర్లోకి వచ్చి ఈ కోవిడ్ సెంటర్ ని చూసిన తర్వాత ఇది కోవిడ్ సెంటరా, ఇది హాస్పిటల్ కాదు, ఇది దేవాలయం, 5 స్టార్ హోటల్ లాగా ఉంటే కనీసం కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మనం పక్కింటి వాళ్ళకు కూడా మాట్లాడడానికి కూడా మనిషి మాట్లాడడానికి కూడా వీలైన పరిస్థితుల్లో కనీసం పక్కింటి వాడికి ఒక గ్లాస్ ఇస్తే, నీళ్ళు ఇస్తే ఆ కోవిడ్ రోగం మనకు వస్తుందేమో అని భయపడే రోజుల్లో, ప్రపంచమంతా గజగజ వణికుతున్న రోజుల్లో మీరు మీ మనసు నిండు హృదయంతో కొన్ని వేల మంది ఇక్కడ కోవిడ్ రోగులుగా వచ్చి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని బాగా చేసుకుని బయట వెళ్తుంటే ప్రతి ఒక్కరిని మేము అడిగాం, బయట వస్తుంటే ఎలా ఉంది ఇక్కడ సౌకర్యం అని. కలిగిరి, కలకడ, మదనపల్లి, ఐరాల, చిత్తూరు, ఇటువైపు రామచంద్రాపురం, రేణుగుంట, కాళహస్తి నుంచి కూడా కోవిడ్ పేషెంట్లు ఎక్కడున్నా కూడా ఇక్కడికే రావడానికి ఇష్టపడేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఆ పేషెంట్ ఇక్కడికి వస్తే ఈ ఆనందమైనటువంటి వాతావరణం ద్వారానే సగం రోగం నయమవుతుంది, ఇక్కడ మంచి వసతులు ఉన్నాయి, మంచి సౌకర్యాలు ఉన్నాయని ప్రతి పేషెంట్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు 100 మందికి మీ గురించి, మీరు చేస్తున్నటువంటి మంచి కార్యక్రమాల గురించి 100 మందికి చెప్పుకున్నారక. నేనైతే మా అమ్మాయి మండలంలో 10th క్లాస్ మైనారిటీలో టాపర్ అయితే ఎమ్మెల్యే గారు ఆ రోజుల్లో ఎవరైతే టాపర్ గా వస్తే వాళ్ళకి కంప్యూటర్లో బహుమతి చేస్తారు. ఆ బహుమతి కూడా తన స్కూల్లో కాకుండా ఇక్కడ 10th క్లాస్ మెడల్స్ ఇస్తుంటే మా అమ్మాయికి అక్కడే కంప్యూటర్ ఇవ్వమని ఎమ్మెల్యే గారిని అడగడం చాలా సంతోషం వస్తానని ఆయన ఇక్కడ నా కూతురికి మండలంలో మైనారిటీలకి టాపర్ గా వచ్చిందన్న ఆలోచనతో ఇక్కడే తీసుకున్నాను. కారణం, నేను ఏదైతే ఒక పండు తింటే దాని రుచి తెలుస్తుందో అలాగా నేను ఒక సామాన్య కార్యకర్తని ఇక్కడికి వచ్చి అక్క అడుగులో అడుగు వేసి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారి ద్వారా, నా తమ్ముడు చంద్రమోహన్ రెడ్డి ద్వారా ఈడ
ప్రతి కష్టానికి తోడుగా ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి జరుగుతుందనడానికి నేనే ఉదాహరణ. ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారి తర్వాత 3 మండలాలకి ప్రోటోకాల్ ఉన్న రెండో వ్యక్తి ఈ నియోజకవర్గంలో నేనే అంటే దానికి నేను అక్కతో పాటు చేసినటువంటి ఆమె మంచిలో నేను కొంత అడుగులో అడుగేసి భాగస్వామ్యం చేశాను. ఆ ఆడపిల్లలు ఏ రోజైతే వాళ్ళకి ఆ కష్టాల్లో ఆమెతో పాటు తోడుగా ఉన్నాను. దేవుడు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు. ఇంకా మంచి చేస్తే దేవుడు నాకు ఇంకా మేలు చేస్తాడన్న ఆశయంతో మౌనిరా గారు వజ్రంలాగా ఏదైతే ఆమెని అపోహల మధ్య ఇక్కడ ఏదైనా చిన్న చిన్నవి తప్పులు జరుగుతూ ఉంటే చూసి బాధపడే వాళ్ళం, ఆమెని చెడ్డ చేయాలని ఎవరైతే అనుకున్నారో వాళ్ళు ఆనందపడతా ఉంటే మంచి గెలవదా, మంచి చేస్తే ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయా అని అనుకున్నా కానీ అక్క గారి ధైర్యం చూసిన తర్వాత మంచి ఎప్పటికైనా గెలుస్తుంది. మంచే గాని చెడు జరగదు. చెడు కొద్ది రోజులు మంచిగా ఉండొచ్చు కానీ చెడు ఎప్పటికీ నిలబడదని అక్కను చూసిన తర్వాతే మాకందరూ కూడా ధైర్యం వచ్చింది. నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను, ఏదైతే మౌహిరా గారు వజ్రాన్ని స్థానం పెడితే ఎలాగైతే ఆ వజ్రం ఇంకొంత కాంతిగా వెలుగుతుందో అలా ఆమె ఇంకా 100 మందికి 1000 మందికి సహాయం చేస్తారని చేస్తూనే ఉంటారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. आज पहली बार मैंने 400 से ज्यादा स्टूडेंट को जो है सनद देकर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। कभी कभी तकलीफ भी खुशियों का जरिया बन जाती है। नहीं तो साल में 50 लड़कियों को 100 लड़कियों को 70 लड़कियों को कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया था। मगर इस बार पहली बार मुझे तकलीफ आने की वजह से मेरे सारे स्टूडेंट को जो है एक ही बार इंशाअल्लाह 400 तालिबात को, आलिमियत को, फजीलत को और डिप्लोमा कोर्सेस वालों को सबको सनद देते हुए और उनको सर्टिफिकेट देते हुए बहुत ही खुशी महसूस हुई है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इन बच्चों को कबूल फरमाए और इनके इल्म को कबूल फरमाए और उनके माँ बाप को जिन्होंने इनको मेहनत किया, लाने में, छोड़ने में, लेकर जाने में, कई तकलीफों को बर्दाश्त करके बच्चों की तालीम को आपने पूरा किया। तो मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करती हूँ कि आपके बच्चे पढ़कर एक आलिमा, एक फाजिला, एक कोर्स कर कर अपने पैरों पर खड़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुके हैं। अल्लाह के फजल से इन्होंने अब अल्लाह के कलाम को जान चुके हैं, अल्लाह की बातों को जान चुके हैं। इनके अंदर सच्चाई के झूठ की पहचान आ गई, इनके अंदर हलाल और हराम की पहचान आ गई, इनके अंदर अल्लाह की वहदानियत की रूह पैदा हो गई कि एक रब है जो हमारा हिफाजत करने वाला है और उसी को हमको चाहना है, उसी से मांगना है। सब चीज़ें भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से होती है। और ये तकलीफ आने के बाद बच्चों की जो दुआ भी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कबूल किया। मैं भी जब सुनती थी तो ये कहती थी कि शायद हो सकता है कि पॉसिबल है भी या नहीं, जाना है बच्चों को देना है क्या नहीं, कैसे कर सकती हूँ क्या नहीं, मगर मेरे रब ने पॉसिबल किया। मेरे बहुत सारे सपोर्टर्स यहाँ पर बैठे हैं जो सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका रोना, आपका तड़पना, आपका अल्लाह से मांगना, अल्लाह ने आज खुशियों में उसको तब्दील कर दिया। इंशाअल्लाह जामिया जून की 1 तारीख से, क्योंकि अभी वो ओमिक्रॉन का भी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो जामिया को जो है एडमिशन स्टार्ट होते थे। तो अभी साल का एंड पे आने वाला है, मई जून वगैरह छुट्टियां हैं, तो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह के फजल करम से जून 1 से ये जामिया में एडमिशन्स होंगे। जो भी लोग रिक्वेस्ट करना है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह का ऐसा फजल है कि जामिया में हमेशा 4000 स्टूडेंट हमेशा जो है रिक्वेस्ट में रहते हैं, जिसमें से 100 को, 50 को, 20 को इंटरव्यू लेके जो है लेते हैं।
टाइम पे ऐसा होता था कि जब स्टूडेंट मेरे पास आते थे तो ट्रेन से वगैरह आते थे तो लोग जो चाहते नहीं थे ये काम हो तो ट्रेन के पास जाकर उनको रेलवे स्टेशन से गलत सलत बातें 1 घंटा बयान करके उनको वापस बिठाकर भेज देते थे। नहीं नहीं नहीं, वहाँ जाना नहीं, वहाँ पढ़ना नहीं, वो ऐसा पढ़ा देगी, वैसे बोल देगी, वो औरतों के बारे में बता रही है, और औरतें फिर उसकी बात में मानती ही नहीं करती। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने पढ़े, तालीम हासिल की। अल्लाह के फजल से हर बच्ची जब शादी करके जाती है उनके ससुराल में हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, और उनके माँ बाप से भी ज्यादा वो मुझे पूछते हैं कि आपा कहाँ है, आपा कैसे हैं, आपा क्या कर रहे हैं। इस तरह से बच्चे हमेशा जो है अल्लाह के फजल से टच में आ गए। और उस वक्त में मैंने साबित खत्मी से खड़ी के जो है मैं हक के लिए पढ़ा रही हूँ, हक इनको सिखा रही हूँ, भले कितने भी लोग कुछ भी कहो, एक दिन ये जरूर बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये यहाँ पर एक लड़की मत समझो, एक आलिमा मत समझो, एक फाजिला मत समझो, बल्कि एक दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी है। एक औरत अगर वो हक पर आ जाती है तो एक पूरी दुनिया है, अगर वो नाहक पर भी आती है तो वैसी है। ये बात अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि आसिया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, ज़ौजाए फिरौन की मजबूती को देखो कि फिरौन के जुल्म के बाद भी ज़ौजाए फिरौन अपने ईमान से नहीं हट सकी, उसके ताकतों के बाद भी, उसकी सल्तनतों के बाद भी। और वही नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वही जब नूह अलैहिस्सलाम एक नबी होने के बाद भी अपनी बीवी को दावत देते हैं तो वो उनकी बात को नहीं मानती है और जहन्नुम को जाती है। तो ऐसे ही इनका बदलाव जो है जमाने को बदल सकता है, दुनिया को बदल सकता है, एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। क्योंकि जब इनके पास इल्म नहीं तो ये बहुत बोखल रखे रहते हैं, हर छोटी बात पे डर जाना, हर छोटी तकलीफ पे घबराना। जब इल्म आ जाता है तो इनको मालूम होता है कि ये अल्लाह की तरफ से है, जो कुछ गुजर रहा है अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ये तकदीर में लिखे ही ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही होना है करके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बच्चों ने आज 400 बच्चों ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह तालीम को हासिल की है। मैं इन बच्चों को, मेरे और पुराने बच्चों को, 1000 स्टूडेंट को इंशाअल्लाह बिजनेस का ट्रेनिंग देने के लिए बहुत जल्द बुलाऊंगी कि इनको बिजनेस कैसे करें। इनको ये भी सिखाना है कि घर में बैठे बैठे ऑनलाइन पे किस तरह से अपने पैरों पे जॉब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमेशा जो है मैं मेरे बच्चों को यही कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अगर कभी हक के ऊपर तकलीफ आ जाए तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले, चाहे माँ बाप दूर करो, चाहे लोग रिश्तेदार कुछ भी। ऐसा हुआ भी है कई बार, तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, हमेशा मैं सीने को लगाऊंगी, तुम मेरे पास आ सकते हो, ये घर तुम्हारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने 13 साल, कोई 14 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल रहकर इस इदारे में पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भेजने के लिए भी हमारे दिल को क्या है, हमेशा बहुत तकलीफ होती है और इनकी बहुत हमें याद भी आती है, क्योंकि आज जाने के बाद एक एक जगह पे हो जाते हैं, कहीं शादी हो जाती है, कहीं दूर जाते हैं। मगर अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनको बेहतरीन जोड़े अता फरमाए रब्बुल आलमीन, और इनके ज़िंदगियों में हमेशा अल्लाह खुशियों को भर दे। और मैं माँ बाप से गुजारिश करूँगी कि आप लड़कियों को मजबूर मत करें कि इतनी पढ़ाई इन्होंने 13 साल, 14 साल, 7 साल पढ़े हैं, अब इनको तुम ऐसे लोगों को लाकर निकाह कर दें जो जहालत में होते हैं, जाहिल होते हैं, इनको समझ नहीं सकते, इनकी पढ़ाई को नहीं समझ सकते। मैं आपको वालिदैन सब यहाँ बैठे हैं तो मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरे बच्चों की आप हिफाजत करें, उनको नेक लोगों के हाथ में दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपनी बेटी को किसी के हाथ में देते हैं तो तुम सोच समझ के देना कि किसके हाथ में दे रहे हैं। मालदारी को मत देखो, अखलाक को देखो, दीनदारी को देखो, अपने बच्चों को जो है अच्छे लोगों के हाथ में रखो। मैं अल्लाह से दुआएं करती हूँ अल्लाह इनको, इनकी औलाद को और इनके नस्लों को, इनकी औलाद की औलाद को क़यामत के सुबह तक अल्लाह तौहीद वाले बना दे। और मुझे इतनी उम्मीद है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है इनसे छोटे मोटे गलतियां हो सकते हैं, मगर यहाँ पढ़ने के बाद ये शिर्क कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की तौहीद पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये हमेशा अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे। अल्लाह से दुआ है कि जितने भी मेहमान यहाँ आए, काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग सब थक चुके हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम को हम इख्तिताम करना चाहते हैं। अभी क्या अलविदा पढ़ना जरूरी है?
बातें सुनने की ज़रूरत नहीं। इनको बच्चों को पहले से ये आदत हो गई है कि ये एक बार मैंने पढ़ा था अलविदाई तराना अपने हाथों से लिखकर, तो इनको ये आदत हो गई कि हर साल जब तक नहीं पढ़ती है जाते ही नहीं है। अलविदा प्यारे बच्चों न भूला करो, अलविदा प्यारे बच्चों न भूला करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो, अलविदा प्यारे बच्चों न भूला करो। अलविदाई की बातों में एक बात है, अलविदाई की बातों में एक बात है, ये तुम्हारे लिए एक एहसास है, ये तुम्हारे लिए एक एहसास है। दिल की गहराई में बात उतरे अभी, ये नसीहत को हरगिज न खोया करो, अलविदा प्यारे बच्चों न भूला करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो। है नसीहत तुम्हें मेरे ऐ फारिगात, है नसीहत तुम्हें मेरी ऐ फारिगात, रब की तौहीद पर तुम रहो ताहयात, रब की तौहीद पर तुम रहो ताहयात, तुम नबी की इताअत मेरे ना सदा, तुम नबी की इताअत मेरे ना सदा, बिदअतों से तुम रहना हमेशा खफा, बिदअतों से तुम रहना हमेशा खफा। पंज वक्त नमाज़े ना छूटे कभी, पंज वक्त नमाज़े ना छूटे कभी, रब के अहकाम पर तुम रहना सभी, रब के अहकाम पर तुम रहना सभी, अलविदा प्यारे बच्चों न भूला करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो। तुम ये दुनिया के तानों से डरना नहीं, तुम ये दुनिया के तानों से डरना नहीं, तुम कुरान और सुन्नत से हटना नहीं, तुम कुरान और सुन्नत से हटना नहीं, हर तकब्बुर की आदत से तुम दूर हो, हर तकब्बुर की आदत से तुम दूर हो, आजिज़ी अंकसारी में मसरूर हो, आजिज़ी अंकसारी में मसरूर हो, अलविदा प्यारे बच्चों न भूला करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो। हो बड़ों का अदब घर में तुम जान लो, हो बड़ों का अदब घर में तुम जान लो, है इसी में रज़ा रब की पहचान लो, है इसी में रज़ा सब की पहचान लो, फूल
है तुम्हें, फूल कांटों से चुन कर दिया है तुम्हें, गंदगी की फिजा से बचाया तुम्हें, गंदगी की फिजा से बचाया तुम्हें। अलविदा प्यारे बच्चों न भूला करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो। दीन हक के लिए तुम न पीछे हटो, दीन हक के लिए तुम न पीछे हटो। लाख तूफान आए इसी पर रहो, लाख तूफान आए इसी पर रहो। अलविदा प्यारे बच्चों न भूला करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो। हमने मारा है हाथों से अपने तुम्हें, हमने मारा है हाथों से अपने तुम्हें, दुश्मनी से नहीं या हसद से नहीं, दुश्मनी से नहीं या हसद से नहीं। दो जहां की खुशी तुमको मिल जाएगी, दो जहां की खुशी तुमको मिल जाएगी। ये समझ कर कभी हमने डांटा तुम्हें, ये समझ कर कभी हमने डांटा तुम्हें। अब रब के लिए माफ कर दो हमें, अब रब के लिए माफ कर दो हमें। दिल में कोई करूरत न रखा करो, अलविदा प्यारे बच्चों न भूला करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो। कैसे भूले तुम्हें किस तरह छोड़ दे, कैसे भूले तुम्हें किस तरह छोड़ दे। दर्द दिल का ये अपना किसे जा कहे, दर्द दिल का ये अपना किसे जा कहे। खून से बढ़ के रिश्ता है ये दीन का, खून से बढ़ के रिश्ता है ये दीन का। ता क़यामत ये रिश्ता रहेगा सदा, ता क़यामत ये रिश्ता रहेगा सदा। जा रहे हो वतन ना भुलाना हमें, फिर भी ऐसे चमन में तुम आया करो। अलविदा प्यारे बच्चों न भूला करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो, याद अपनी दुआओं में लाया करो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कबूल करे और हमारे बैठने को कबूल करे और पढ़ने को कबूल करे, और इंशाअल्लाह मेरे बच्चों को अल्लाह अमल करने की तौफीक दे, और उनको दुनिया में भी अल्लाह हर तकलीफ से बचाए और आखिरत में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाए। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी, हो सकता है कि दुनिया में हम कभी मिल सकेंगे नहीं मिल सकेंगे, जब मैं आखिरत में आपसे मिलूँगी या आप मुझसे मिलेंगे तो अल्लाह हमें कभी शर्मिंदा ना करे, कभी सर झुकने का अल्लाह हमें मौका ना दे, और हमेशा हक पर चलने वाले बनाए, हक के रास्ते पर अल्लाह ताला बच्चों को चलने वाले बनाए, और हक के लिए कभी डरना नहीं। जो बंदा हक के लिए ज़रूरत पड़ती है तो माँ बाप के खिलाफ भी खड़े हो जाओ, अल्लाह फरमाते हैं, तो हक के लिए जो है आप कामयाब रहे। और इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारान जामिया और हमारे उलमा इकराम मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मतलब इल्म में मुझे
कुछ नहीं मालूम, बस मैंने ये कोशिश किया कि अल्लाह रसूल के दीन को आगे बढ़ाएंगे, मगर आप बहुत ज़्यादा इल्म वाले हैं। मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मेरे बगैर भी जो है मेरे बच्चों को संभाला और उनको ऑनलाइन पर आपने क्लासेस पढ़ाया। और जब मैं नहीं भी थी, हो सकता है खाने पीने की सहूलतें भी तुम्हारे लिए बहुत कम हुए, मैंने सुना है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ, ये तुम्हारी हमारी आजमाइश थी, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहे थे, अल्लाह इंशाअल्लाह ख़त्म करेगा, बहुत जल्द अल्लाह आसानियाँ पैदा करेंगे। और हमारे जामिया का जो जान है, जो हम जामिया के पिलर हैं, अब्दुल अजीज़ जो है माशाअल्लाह, ये मेरे मामू के बेटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी उम्र में मैंने मामू जान से कहा था कि मामू जान तुमको अल्लाह ने 11 बेटे दिया है, तो एक बेटे को मुझे दे देना अल्लाह की खिदमत करने के लिए, दीन की खिदमत करने के लिए। तो मामू जान उस दिन जब भेज दिए, आज तक कभी नहीं बुलाए माशाअल्लाह। अभी उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। और वो माशाअल्लाह इतना मेहमानी खिदमत करना, सारे लोगों को संभालना, सबको यहाँ क्लीनिंग करने वाले और जामिया में काम करने वाले, वैसे ही जो भी अपने बड़े बड़े लोग हैं जो हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, यहाँ का लोग हमें बहुत सपोर्ट करा, हर वक्त में सपोर्ट करा। कभी कोई भी सताने को लग गए तो गैर खौफ होते हुए भी आ गए। इसीलिए मैं सबको दर्ज देती हूँ बेटे, तुम सबको भी और पूरी दुनिया को, मेरे सुनने वालों को मैं दर्ज देती हूँ। कभी भी जब इंसानियत का मामला आता है तो आप मजहब को नहीं देखना, वहाँ पर कोई बीमार है, वो हिंदू है, मुसलमान है, हमें नहीं उसको देखना है, कोई भूखा है उसको खाना खिलाना है, जो भी ज़रूरत है हमको काम करना है। हाँ, हम हमेशा अल्लाह पे भरोसा करना है, कभी तीसरी चीज़ पर कोई भरोसा नहीं करना और शिर्क से पाक रहना आप अल्हम्दुलिल्लाह। गीबत की बातों में, बुरी बातों में, गंदी बातों में नहीं। आजकल सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा आप बातों को पहुंचा सकते हैं। डेली एक छोटा दिन का वीडियो बनाएं या अच्छे बातों का वीडियो बनाएं या वुमेन्स एम्पावरमेंट का वीडियो बनाएं। डेली एक चैनल बनाकर आप अपलोड करें। कैसे भी मोबाइल को आप बेकार यूज़ करते हैं, आपकी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचेंगे, नहीं तो क़यामत तक आप वो बुराइयों को देखते देखते आप जवाब नहीं देंगे तो अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपने सुना था बुराइयों को, आपने अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर क्यों किया, क्यों नहीं किया। तो मैं बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हिदायत दे। और मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे साथ देने वालों का, यहाँ के हमारे सपोर्टर्स का और हमारे स्पॉन्सर जो 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से लेकर ऊपर तक काम कर रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जो भी लोग कैमरे कवर कर रहे हैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर किसी को भूल गई हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ। मैं बच्चों के वालिदैन से गुजारिश करूँगी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि दोपहर खाने का वक्फा इसलिए नहीं दिया कि अगर वक्फा देते हैं तो ये प्रोग्राम पूरा हम ख़त्म कर नहीं पाते थे। अब इंशाअल्लाह सब फारिग हो जाएं और वहाँ खाने का इंतज़ाम है, खाना खाएं, नमाज़ें पढ़ें, सुकून से इत्मीनान से आप जाएं अपने वतनों को और तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सहूलत है वैसे, अगर किसी की ट्रेन मिस हो गई, किसी को जाने में मुश्किल हो गई तो आप जामिया में रुक कर आराम से जा सकते हैं अल्लाह की फजल से। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए इसी के ताल्लुक से कुछ सवालात करते हैं और ऐसा ही एक इरादा अपने जो है हैदराबाद में भी आप डालें, ऐसी गुजारिश भी आपसे करते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे 400 से ज़्यादा स्टूडेंट को अल्हम्दुलिल्लाह स्नात तकसीम करते हुए, और इनका हमारा एक रूहानी रिश्ता होता है जो पढ़ाने से लेकर आज तक जो इनका साथ होता है वो एक अलग ही रिश्ता होता है। इनको सब कुछ देखने में, करने में, बच्चों की देखभाल में, हर चीज़ तो हमेशा बच्चों से ज़्यादा जो है यही हमें याद आते हैं और ज़्यादा इनका ख्याल होता है सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी ये कॉलेज का फाउंडेशन डाल के कितने साल हो गया मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटल 25 साल हो गए इसके। 25 साल के दरमियान अब तक जो है आपके पास से कितने ऐसे लड़कियां जो है इल्म हासिल करके यहाँ से गुजरे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 3000 से ज़्यादा लड़कियाँ जो है पढ़कर फारिग हुए हैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नाज़रीन को बता दें कि अलिफ लाम मीम ये 3 अल्फाज भी पढ़ने से जो है कितने नेकियां मिलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम जो पढ़ता है तो हर हुरुफ पर उसको जो है 10 नेकियां मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंदाज़ा आपको कितने नेकियां मिले होगी? मैं एक बेशक है, मगर अल्लाह की रज़ा चाहती हूँ मैं। नेकियां पहाड़ों के बराबर भी हो
मेरे रब की रज़ा चाहती हूँ। अल्लाह को मालूम है कितने नेकियां वो मुझे देता है, और बस वो राज़ी हो जाए मुझे, बस मेरे लिए काफ़ी है बस। चलिए देखिए, एक नूरा शेख ने कहीं ऐसे नूरा शेख को बना दिए। हमारी ये बहनों से हम कुछ सवालात करेंगे कि यहाँ पर इनको तालीम। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नौहीरा शेख का जो मकसद है वो पूरे दुनिया में फैल चुका है, और मेरे स्टूडेंट पर मुझे भरोसा है, मेरे बाद भी ये काम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं अल्लाह के फज़ल से। तो आइए नाज़रीन, हमारे बहनों से हम पूछते हैं कि यहाँ पर इन्होंने किस तरह की तालीम हासिल की और यहाँ की तालीम से जो है ये कितने खुश हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख तस्मिया, आंध्र प्रदेश गालीवीर से। आपने कौन सा कोर्स किया यहाँ पे? फजीलत, फजीलत। हाँ। माशाल्लाह आज मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल का था? 9 साल का था। बहन आपका? मेरा नाम फिरदौस है और मैं दावणगेरे से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल का कोर्स की हूँ, सादिस आलिमियत सादिस। कितने साल का कोर्स था? 8 साल का कोर्स। 8 साल। आपका बहन? मेरा नाम राबिया है, जो कि कड़पे से हूँ। मैं फजीलत पढ़ चुकी हूँ और वो फजीलत कोर्स कितने साल का? 9 साल का है। मेरा नाम शेख राहिला है और मैं आंध्र प्रदेश से गालीवीर से हूँ, और मैंने फजीलत मुकम्मल की है और वो 2 साल का है। इंग्लिश मीडियम की कुछ मालूमात हासिल की आपने? हाँ, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। इंग्लिश, कंप्यूटर, और वो 10th क्लास के जितने हैं वही पढ़ाया जाता है। एग्ज़ाम भी लिखाया जाता है 10th। माशाल्लाह। चलिए आगे चल के आप लोग जो है नूरा शेख मैडम का नाम किस तरह से रोशन करेंगे, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कुछ बताएंगे? हम जिस तरह हमारे बाजी आगे बढ़कर कहीं मुसीबतों को झेला है, सहा है, और किसी से डरे बगैर उन्होंने हर कदम में भी अल्लाह का नाम लेकर ही आगे बढ़ा है, उसी तरह हम उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। दुश्मनों बाखबर हो जाओ, होशियार हो जाओ, क्योंकि नूरा शेख आज एक नहीं है, कई ऐसे नूरा शेख है जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बहनों, आपने हमसे बात किया। मैडम कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, माशाल्लाह आपका जज़ाकल्लाह खैर कहना चाहूँगी कि आपने इसको इंशाल्लाह देखा अपने आंखों से, अल्हम्दुलिल्लाह। बेहद हमें खुशी हुई है आपके इस काम को देखकर, क्योंकि नूरा शेख को जो है दुनिया वाले सिर्फ एक बिजनेस वुमन के नाम से जानते थे, लेकिन वो कितनी दीनी है और कितने ऐसे मुस्लिम लड़कियों को जो है दीन की तालीम देकर उनको तैयार की है, एक नेक राह पे चलने की जो है इनको हिदायत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम एज ए मुस्लिम, आपका बहुत जो है शुक्रगुजार है। आपसे फिर एक बार गुजारिश करते हैं, ऐसा ही एक जो है इंस्टीट्यूट हो या कॉलेज हो, आप हैदराबाद में भी डालें, वहाँ के लड़कियों को भी तालीम की बहुत सख्त जरूरत। कोशिश करेंगे आप इंशाल्लाह, बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व हाज़िरात, मेहमानान, आप तमाम से गुजारिश है कि जो मर्द हज़रात हैं वो पीछे की जानिब से जो सामने गेट है वहाँ से आप लोग निकलें, और जो ख़वातीन हैं वो स्टेज के पीछे से जो दरवाज़ा है वहाँ से निकलेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ अभी इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ाई जाएगी, आप लोग नमाज़ में शरीक हों, उसके बाद ज़रूर खाना खा के इंशाअल्लाह अपने घरों को लौट सकते हैं। आप खाना ना बोलें ज़रूर इंशाअल्लाह नमाज़ के बाद खाने से पहले बोलें। इसी तरह दावती मराकज़ से मैं नाम ले रहा हूँ। नेल्लोर से जो फारूक साहब आए हैं वो करनूल से अहमदुल अली तौहीदी, बुचीरेड्डी पालियम से रिजवाना अलमासी, और इसी तरह शाहपुर से जो मोहतरमा सारा आई हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ऑफिस में आपके मराकज़ के जो असनाद हैं शेख अबू हुदा नूर मोहम्मद जामी हफिज़हुल्लाह से हासिल कर रहे हैं।
जो भी हुजूर से फारिग हो जाएं, इनसे जो मुसल्ला है वहाँ नमाज अदा कर लें। जैसे जैसे आप